So today we are going to start this chapter triangles. So triangles is one of the most important chapters out there in geometry. So triangles, what is triangles? It's nothing but a figure bounded by three line segments in a plane. It has three vertices, three sides, and three angles. Okay. So there are like basically various types of triangles, but when it comes to differentiating them on the basis of angles, so we have only three, which is acute, obtuse, and there is another which is the right angle triangle. And in terms of sides, we have the scalene, we have the isosceles, we have the equilateral. ठीक है, तो दो टर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं ये। तो अभी ट्राइंगल की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जो हम सबसे पहले जो हम पढ़नी चाहिए, दैट इज सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। a plus b is greater than c, a plus c is greater than b, a b plus c is greater than a। इसका एक और इनवर्स है। व्हाट इज इनवर्स? the sum the difference between the two sides has to be less than the third side। the difference between the two sides has to be less than the third side। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? ये b को उस साइड लेके आ गया मैं। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ? c is greater than b minus a and b is greater than a minus c। अंडरस्टूड? ये दो चीज याद रखनी है आपको। अब इसी तरीके से acute, obtuse and scale right angle triangle में I'll tell you some property जिसको याद रखना। So we have an acute angle triangle। acute angle triangle का मतलब क्या है? उसके सारे के सारे एंगल्स जो रहेंगे वो acute रहेंगे, यानी all angles will be less than 90 degree। When it comes to RHS, like right angle triangle, so उसमें one angle is equal to 90 degree। And there isn't something known as the obtuse angle triangle। तो obtuse angle triangle का क्या सीन है? One angle will be greater than 90 degree। One angle। अब इस चीज को याद रखना, there can be only one right angle 190 degree in one triangle and there can be only one obtuse angle in one triangle। ठीक है, इस ये एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, और ये दोनों भी एक ट्राइंगल में नहीं हो सकते, 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अंडरस्टूड? बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर दो ही 90 90 हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा, थर्ड विल बी जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसे ट्राइंगल बना रहा हूं ए बी सी, दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी सी। ठीक है, so generally what we denote is the vertices as the capital letters and the sides opposite to that vertex as small letters। So this is the vertex A, this opposite, this is small a, this is B, this is C। Similarly this is C, this is A, this is B, this is A, this is C, this is B। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एवरीबडी नोज द राइट एंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम है, दिस सेज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडरस्टूड? इस केस में बी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और इसको चेंज करता हूं मैं, इसको मैं बी बनाता हूं, इसको सी बनाता हूं, सो दैट दिस बिकम्स बी, दिस बिकम्स सी। Here what will happen? Here b square will be greater than a square plus c square। ये पॉइंट समझ में आया तीनों को? समझ में आया? यू कैन जस्ट सिंपली लाइक द कि यू आर विद मी राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी विल कम टू द on the basis of differentiate करेंगे किसके basis पे? On the basis of the sides। ठीक है, if all the sides are equal then that is known as the equilateral triangle। equilateral triangle, lateral means side, equi मतलब equal है ना, सिंपल सी बात है। isosceles का मतलब क्या होएगा? with two sides or two angles equal है ना, ये तो two sides की बात है, वो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। स्केलिंग में none of the sides are equal to each other। तो AB is not equal to BC, which is not equal to AC। Understood? ये सारे के बराबर होते हैं और ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। अभी हम धीरे धीरे करके इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि बहुत काम आती है, ठीक है। तो एक बार राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस कर लेते हैं। A triangle having one of the angles 90 degree है ना, the side opposite to the right angle is known as the hypotenuse, which is the longest side in a right angle triangle, and the remaining sides are the perpendicular and the base, ठीक है। तो this is the Pythagoras theorem। कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, दो तीन, ठीक है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जनरली अगर आपको पता है तो व्हाट इज द केस, व्हाट इज द सिनेरियो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो दी साइड्स आर इक्वल, दी साइड्स आर इक्वल, दी साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल होएगा ना, दिस एंगल इज नोन एज द वर्टिकल एंगल, ठीक है। वर्टिकल एंगल कहते हैं इसको। और साइड ऑपोजिट टू द वर्टिकल एंगल इज नोन एज द बेस। ये विद रिस्पेक्ट टू आइसोसेलेस ट्राइंगल टर्मिनोलॉजी ये टर्म्स याद रखनी आपको, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर शायद ही कुछ है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ट्राइंगल्स, कि आप ये नहीं बोलो कि यार ये चीज हमने कभी पढ़ी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा हट के आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारे एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं ये आपके शायद एग्जाम से नहीं आए, बट व्हाट आई एम हियर फॉर इज कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊं, ठीक है। सिंस वी हैव टाइम, वी आर नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपको सारी चीजें कवर कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज देयर। अभी बाकी टर्म्स भी बताऊंगा जिससे हम ऑर्थो सेंटर इन सेंटर भी कवर करेंगे, बट एक दो पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। We will discuss sum of the three angles is equal to 180 degree. Sides opposite to equal angles are equal and vice versa. ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स ऑपोजिट भी इक्वल होंगी, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर आर 45 डिग्री। सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड बराबर रहेंगी, है ना। दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, और हमें पता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो ईच इज 45 डिग्री विच इज 5/4, ठीक है। दिस पॉइंट इज आल्सो डन। एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of the two opposite interior angles. The angle z is equal to angle x plus angle y. How is this possible? This is because this angle plus this angle plus this angle, angle 1 मान लेता हूँ, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस y। लेकिन एंगल 1 और एंगल z का जो सम होएगा दैट विल आल्सो 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 1 प्लस जेड की वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। एंड इससे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू एंगल 1, तो रखो आप, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस जेड लिख देता हूँ इसको, 180 माइनस जेड, तो 180 180 कैंसिल, और अगर आप देखो तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई हो जाएगी। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी याद रखनी चाहिए आपको। Side opposite to the greatest angle is the longest side. Similarly, side opposite to the smallest angle is the smallest side. ठीक है। If the sides are arranged in ascending order of their measurement, then the angles opposite to the sides will also be in the ascending order. और इसका vice versa. अगर उसको descending order में करेंगे तो यार I'll upload it on YouTube. I'll share the link with you. You can watch it as many times as you want, whenever you want. Even after you clear your CDS, even after you get commissioned, तब भी देख सकते हो अगर इतनी अच्छी लगती है तो, ठीक है। Just kidding. I'll upload it either today, positively by tomorrow, but कोशिश करूंगा मैं आज ही अपलोड कर दूं वैसे, ठीक है। अगर हाँ कोशिश करते हैं कि आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। So we're done with this point. There can be only one right angle triangle, one obtuse angle in any triangle. I've already discussed this, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, मैं आपको तीन चार चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। दी व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना।
सो इफ आई हैव अ ट्राइंगल, ये ऑब्वियस हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो दिस इज एन एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अभी व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट 90 डिग्री कहीं पे आएगा। बाइसेक्टर का मतलब जो बाइसेक्ट करती है, जो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या होगा? जैसे वो देखो ध्यान से, ए बी सी का नहीं होगा, साइड का होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको जो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा बट 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? तो जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री पे कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पे ये एक हो गया, दिस इज योर अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड यहां पर भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। ये रफ ड्रॉ कर रहा हूं, जहां पे जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, ये दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, दैट इज नोन एज द सर्कम सेंटर। देखो ध्यान से, द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट नोन एज द सर्कम सेंटर। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट। तो ये जो है, ये कहां से इक्विडिस्टेंट है? हर एक वर्टेक्स से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। अब सिंपल सी बात है, अगर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम थ्री पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हो गया? दिस कैन एक्ट एज अ रेडियस। तो एक सर्कल बना सकते हैं हम यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई? दिस सर्कल इज नोन एज द सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कम सर्कल, ठीक है। और ये जो इसका सेंटर है, सर्कम सेंटर, रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, विच इज दी सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्कल, जो बाहर से सर्कल पास कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, सर्कम सर्कल का। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दीज फोर थिंग्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक सेंटर उसी में आता है, ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द इन सेंटर एंड द एक्स सेंटर। ये थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सो अभी हमने क्या कहा था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करे थे। नाउ वी विल डिस्कस एज समथिंग नोन एज द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट नोन एज द इन सेंटर। तो अभी क्या है, जैसे ये ए है, ये बी है, इसको बाहर लिखता हूं, बी है, दिस इज द वर्टेक्स सी। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इनको डिवाइड कर रहा है टू इक्वल एंगल्स में, मर्ज नहीं कर रहे, बट आप इस चीज को समझ लेना। तो व्हाट विल हैपन, दे विल कोइंसाइड एट ए पॉइंट विच विल बी नोन एज द इन सेंटर। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, इस चीज को देखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना। तो ये दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी साइड्स। वो कहां से इक्विडिस्टेंट था? वर्टेक्स से था। मेरी बात समझ में आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस था, दैट वाज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी वर्टिसेस, इसलिए एक सर्कम सर्कल बन रहा था। बट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी साइड्स, ठीक है। देखो यहां से, तो इक्विडिस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, एक सर्कल बन सकता है। दिस सर्कल इज नोन एज द इन सर्कल, इन सर्कल। और ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस, दिस इज नोन एज स्मॉल आर, विच इज नोन एज द इन रेडियस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ध्यान से देखो अभी भी आप, ठीक है। इधर लिखा है is equidistant from the three sides of the triangle, that is the perpendicular drawn from the in center to the three sides are equal in length, and this length is known as the, ये यहाँ पे I just want to know why is this use the term perpendicular drawn from the in center? Anybody who can tell me perpendicular drawn from the in center? हर्ष, इंदर, anybody who can tell me why is it mentioned कि perpendicular drawn है? कुछ थोड़ा हिंट लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चल कोई नहीं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है।
इसको देखो, पहली सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। व्हाट इज द साइड ए बी टू दिस सर्कल? व्हाट इज द साइड ए बी टू दिस सर्कल? व्हाट इज द साइड ए बी टू दिस सर्कल? इज इट नॉट ए टैंजेंट? अरे हाँ है ना, टैंजेंट है या नहीं है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टैंजेंट है। और ये जो सेंटर से जो पॉइंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ रेडियस, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां के लिए, समझ में आया? और ये परपेंडिकुलर होती है, टैंजेंट रेडियस की परपेंडिकुलर होती है, सबको पता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला था। सो वी हैव रेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, नाउ वी हैव रेड द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अभी ये तो था इन सेंटर, सिंपल सी बात है, इन सेंटर। नो, व्हाट इज एक्स सेंटर? एक्स सेंटर को देखो ध्यान से। अम, अभी ये सेम मैंने ऐसे इसको इसको एक्सटेंड कर लेता हूं। ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी। अब एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं, एक्सटीरियर एंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं, और जो तीसरा वर्टेक्स है उसका जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, जहां पे ऐसे गलत बना दिया मैंने, उसका जो आ रहा है जहां पे ये मीट करेंगे, दिस विल बी दी एक्स सेंटर ऑफ वर्टेक्स ए। और ये क्या करेगा, ये इधर से और ये इन तीनों साइड को ऐसे मीट करेगा और एक सर्कल बनाएगा। दिस इज दी एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। ठीक है, इंदर समझ में आया? तो एक्स सेंटर कैसे बनता है? एक वर्टेक्स का इन सेंटर, जो मतलब इन सेंटर सॉरी एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, और बाकी दो एंगल्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज एक्स सेंटर। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि एक एक यहां पे बनेगा, दो, एक यहां पे बनेगा, तीन। सो इन वन ट्राइंगल देर आर थ्री एक्स सेंटर्स एंड वन इन सेंटर। समझ में आया? ठीक है, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। यहां पे इसने कुछ लिखा हुआ है, देखो, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल बी आई सी, दिस एंगल, एंगल बी आई सी। इंदर कैन यू प्रूव दिस? थोड़ा लॉजिकली। देखो सिंपल है, काफी सिंपल है ये। हम हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। एक तो एक्सटर्नल ट्रायंगल जो एबीसी है। तो अभी देखो एबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। कैन आई नॉट राइट इट एज टू टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये टू 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 सबसे कट जाएगा और एंगल एबीसी की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। ये समझ में आया इंदर? ये समझ में आया? ठीक है, गुड। अभी मैं अगर अंदर वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो इधर देखो ध्यान से। व्हाट इज देयर? हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस कौन सा एंगल? बी आई सी। ठीक है, एंगल बी आई सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके आ जाऊंगा, व्हाट विल दिस बिकम? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ठीक है, द सर्कल ड्रॉन, एक सेंटर मैंने डिस्कस कर दिया। व्हाट इज वन वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक सेंटर। ठीक है, टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक,
3 एक्सेंटर्स ऑपोजिट टू ईच वर्टेक्स, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड डिस्कस करना है। लेट अस सी इफ आई एम फॉरगेटिंग एनीथिंग, नहीं। अभी देखो ध्यान से, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर कैसे आता है? देयर इज समथिंग नोन एज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कह दो, इसको ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए वर्टेक्स। इंदर यू वांट टू से समथिंग? नहीं भैया। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट तो पूछ सकता है आराम से, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है जिसमें किसी वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर मतलब उसकी ऑपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। दैट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्थो सेंटर को भी जनरली डिनोट बाय द सिंबल एच, विच आई विल कंफर्म, ठीक है। एच से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को। हाँ भैया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्कस कर लिया, एंगल बाइसेक्टर डिस्कस कर लिया, एंड देयर इज समथिंग नोन एज द ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंड देयर इज सिर्फ ऑल्टीट्यूड जिसको परपेंडिकुलर डिनोट करती है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये दिस पॉइंट नोन एज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, दिस इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। इसका कोई सच सर्कल इंसेंट सर्कल ऐसे कोई रिलेवेंस तो नहीं है, बट अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। द लास्ट थिंग दैट इज द मीडियन, ठीक है। मीडियन, इसको सिर्फ बाइसेक्टर कर देता हूँ, साइड बाइसेक्टर करके, ठीक है। तो ये चार चीजें, तो ऐसा ड्रॉ करा जाए कि दिस इज इक्वल एंड दिस इज इक्वल। जिस पॉइंट पे मीट करती है दैट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज एच, और द सेंटर इज एच, सरकम सेंटर इज आई डोंट नो, सी, सी होते हैं, इन सेंटर इज आई, ठीक है। तो जो इन सेंट्रॉइड होता है, दिस डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। दिस इज 2:1, दिस इज 2:1, दिस इज 2 सॉरी, दिस इज 2:1, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, और तो सेंटर इन सेंटर सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने दो फॉर्मूलेज बता देता हूँ, थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है इसके साथ में, और वो साइन रूल, को साइन रूल बता देता हूँ। ये भी कई बार काम हो जाता है ट्रायंगल्स में। तो साइन रूल क्या कहता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स सर्कम रेडियस। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में एक साइड का बताऊंगा, एक साइड का बताऊंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो, नहीं तो मैं लिख ही देता हूं। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ऐसे ही कॉस बी जो होएगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए सी। और कॉस सी जो रहेगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये जो आपका जो सरकम सेंटर था जिसमें कैपिटल आर आया था, आपको वो फॉर्मूला दिख गया है। कैपिटल आर का फॉर्मूला रहता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इन सेंटर का जो रेडियस था दैट वाज स्मॉल आर। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर सबको पता है, निकालते कैसे? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक जस्ट लाइक दी मिड पॉइंट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम्स इनको मैं बोल रहा हूँ इंदर, ठीक है, लिख ही नहीं है ये, इनको बोल रहा हूँ ये, और वो बहुत ही क्या कहते हैं इम्प्लाइड है, ये बड़ी सिंपली अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना एक बार, रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा एक बार, ठीक है। क्योंकि लिखने के लिए फिर मैंने वही सोचा कि यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको लिखने में, एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं, ठीक है। दीज आर द ज्योमेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है, दीज वर द ज्योमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या चीजें हमने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करा था, राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करा था, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल डिस्कस करा था, ठीक है। एंड आई थिंक वो इसने यहाँ पे लिखा होगा, Hmm, नीचे आ रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, बट मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। um, so we have the acute angle triangle, acute, we have the right angle triangle, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, वी हैव द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हम पॉइंट करते हैं सरकम सेंटर का, सरकम सेंटर का, ठीक है। ये इनसाइड लाई करता है, इनसाइड। ये कहां पे लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, इट लाइज ऑन दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये आउटसाइड लाई करता है, ठीक है, सिंपल। क्यों लाई करता है आउटसाइड, सिंपल सी बात। एक्यूट में तो देखो सिंपल सी बात है, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ये इनसाइड लाई कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, तो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, सिंपल सी बात। एंड वी नो दिस, सिंपल सी बात, क्या कि जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था ट्रिग्नोमेट्री वाली में, कि इसका जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या कहते हैं, यहां से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं, जहां पे मीट करता है हाइपोटेन्यूज से, दिस इज कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स, एंड दिस इज द सर्कम रेडियस। और सर्कम सेंटर कहां पे लाई करा, हाइपोटेन्यूज पे। इंदर, एम आई क्लियर? जी भैया। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑप्टिस एंगल का बाहर क्यों लाई कर रहा है, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल तो देखो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है ना। तो क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बाहर लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है ना, दिस इज लाइंग आउटसाइड। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वील डिस्कस अबाउट दी ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इन सेंटर भी आप दिमाग लगा सकते हो उस चीज के ऊपर कि कैसे लाई करेगा कैसे नहीं, बट इन सेंटर का जनरली डिस्कस नहीं करता जाता इतना ज्यादा। ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ऑर्थो सेंटर क्या था, ऑर्थो सेंटर क्या था, दी ऑल्टीट्यूड से जो बनता है। तो सेम दिस विल लाई इनसाइड। ये कहां पे लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या लगता है इंदर, कहां पे लाई करेगा, बताता हूँ मुझे। दिमाग लगा थोड़ा सा। आउटसाइड। आउटसाइड की लाई करेगा, देखना ध्यान से देख, ये तेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कहां पे आएगा, अरे ये 90 डिग्री है ना, तो ये परपेंडिकुलर तो ये पॉइंट हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, अरे देखो ए बी सी, वर्टेक्स इसका पे। परपेंडिकुलर सी पॉइंट पे, इसका वर्टेक्स पे, इसका परपेंडिकुलर, इसका वाले का परपेंडिकुलर कहां पे आएगा, ऐसे रहेगा ये। लेकिन कहां पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर कौन से है, वर्टेक्स ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अब और ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल का, ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल देखो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर क्या है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर आउटसाइड लाई करता है, हाँ है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है।
इस पॉइंट का परपेंडिकुलर कहां लाई करेगा? इस पॉइंट का परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर कहां लाई करेगा? इसका परपेंडिकुलर तो चलो ठीक है, ऐसे लाई करेगा, इसका कहाँ करेगा? ठीक है। इसका देख कहां लाई करेगा, अरे देख जैसे इसके लिए ऑप्टिक्स एंगल है, इसके लिए भी ऑप्टिक्स एंगल है ना, ये बात समझ में आई? तो ये तो ये बेसिकली सीधा चला जाएगा ना। आउटसाइड लाई हाँ करेगा। ऐसे अभी ही। मीट कहां पे करेगा वो चेक करना है, ठीक है, मीट कहां करेगा एक बार देखना पड़ेगा। तो और इसका ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल का और सा सेंटर कैसे बनेगा एक बार देखना ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर तो सिंपल सी बात है नीचे आ रहा है, ठीक है। ये गलती कर रहे थे हम, इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और इसका परपेंडिकुलर मैं इधर बना रहा था वो गलत है, इसका परपेंडिकुलर भी तो ऐसे आएगा। जैसे इसका भी मैं थोड़ा साइड से लेकर आ रहा हूं तो इसका भी साइड से आएगा ना, तो ये यहां पे बनेगा। मैं गलती क्या कर रहा था, मैं ऐसे गलती कर रहा था कि इसकी तो मैं ऐसे लेके आ रहा था और इस वाले को सीधा लेके आ रहा था, है ना, ये इस साइड पे परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, वो गलती कर रहा था, ठीक है। तो ये भी आउटसाइड बना, ठीक हाँ है, दिस भैया। इज आउटसाइड। जी भैया आ गया। सो दिस इज आउटसाइड। अब और क्या डिस्कस करना रहता है? ये चीज हो चुकी है, और मैं मीडियन वाला बता ही चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ चलेगा कर सकते, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो मीडियन ड्रॉ करा जाएगा, जो भी रहेगा मीडियन, क्या है ये मीडियन सबको पता है, दिस इज आर। सो दिस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज 2r, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसका सर्कम रेडियस कहाँ है, सर्कम रेडियस कहाँ पे आएगा इंदर? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कहाँ पे एक आएगा? बार दोबारा बताना। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर आएगा हाइपोटेन्यूज पे, और इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इसको लिखने का ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। द इन रेडियस इज लेस देन हाफ ऑफ एनी ऑफ द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये मैं एक फॉर्मूला से प्रूव करके दिखाऊंगा इक्विलैटरल और ट्रायंगल के समझा टर्म्स ना। में, ठीक है। जो इन रेडियस है, इन रेडियस, दिस इज लेस देन दी हाफ ऑफ एनी ऑफ द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि ऑल्टीट्यूड्स एक बड़ी है एक छोटी है एक उससे बड़ी है, तो जो सबसे छोटी है उससे भी उसके हाफ से छोटी ही रहेगा इन रेडियस, समझ में आया? ठीक है भैया। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसके जो ऑल्टीट्यूड्स क्या है, ऑल्टीट्यूड्स, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, और दिस इज द ऑल्टीट्यूड, ठीक है। हाँ जी तो भैया। ये जो इन रेडियस जो रहेगा उसका, ठीक है, ये तो नहीं रहेगा इन रेडियस, क्योंकि दिस इज दी, व्हाट इज दिस इज दी ऑर्थो सेंटर। लेकिन इसका जो भी इन रेडियस रहेगा वो इसके ऑल्टीट्यूड्स के हाफ से कम ही रहेगा, ठीक है। कोई छोटा ऑल्टीट्यूड भी रहेगा इसका, अगर कोई छोटा ऑल्टीट्यूड भी रहता है ये उससे भी उसका हाफ से कम रहेगा, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द वर्टेक्स इज द राइट एंगल, वेयर द राइट एंगल इज फाउंड इज द ऑर्थो सेंटर, ये हमने देख लिया है। In obtuse triangle, triangle orthocenter lies outside the triangle. We have seen this. Centroid divides the median in the ratio 2:1. The part of the median towards the vertex being the length or twice the length, the part towards the side. We have seen this. In a right angle triangle, the length of the median drawn to the hypotenuse, the length of the median drawn to the, is equal to half of the hypotenuse, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है।
This median is also the circumradius, and the midpoint of the hypotenuse is the circumcenter. Circumcenter lies outside the triangle. हमने देख लिया है. Isosceles triangle. This is important. This is important. ठीक है. क्या important है ये? This triangle ये is आपका आइसोसलेस है. आइसोसलेस में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में. ठीक है. दिस इज इक्विलैटरल. ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों साइड बराबर है. ठीक है. In an isosceles triangle, the centroid, orthocenter, circumcenter, and the incenter all lie on the median to the base. So this is A, this is B, this is C, this is D. What is D? AD is the median. ठीक है. AD is the median. तो कह रहा है आपके चारों पॉइंट्स, द सेंट्रॉइड, द ऑर्थोसेंटर, द सर्कमसेंटर, द इनसेंटर, चारों के चारों पॉइंट्स है वो आपके इस पे लाई करेंगे, बट दे डू नॉट कोइंसाइड. ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बट इसी मीडियम पे लाई करेंगे. ये देख अंदर व्हाट इज रिटन, मीडियन टू द बेस. व्हाट इज द बेस? बेस इज द अनइक्वल साइड. याद आया मैंने बताया था बेस क्या था? हाँ, हाँ, नीचे वाली साइड. नीचे वाली साइड. नीचे वाली नहीं, मतलब जो साइड जो बराबर नहीं है, जो साइड बराबर नहीं है उसको बेस कहते हैं. और इसको क्या बताया था? इसको वर्टिकल एंगल बताया था. एंगल. ठीक है. Equilateral triangle on the other hand, equilateral triangle on the other hand, इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स रहते हैं आपके, देखो, the centroid, orthocenter, circumcenter, incenter, all coincide एक पॉइंट पर मिलेंगे. ठीक एक है. पॉइंट पर होता है. GOHI. ठीक है. वो कहाँ से आ गया? सी लिख सकते हैं, HI. ठीक है. या ऑर्थो एच है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर को सी से लिख दिया. ठीक है. सिंपल सी बात है. ठीक है, समझने के लिए. द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2:1. तो इसको अभी हम प्रूव कर लेते हैं. ठीक है. इसको दो तरीके से प्रूव करा जा सकता है. दो तरीके से. ठीक है. कैसे दो तरीके से प्रूव करा जा सकता है मैं बताता हूँ, बट वी विल टेक अ ब्रेक फॉर अ मिनट. We'll look at 20 feet away, blink our eyes 20 times, है ना. ठीक है. तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये वाली द रेडियो इक्विलैटरल ट्रायंगल में r इज टू स्मॉल r की वैल्यू होती है 2:1. रेशो. दो तरीके से कर सकते हैं इसको, है ना. रेशियो दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज मेथड जो मैंने फॉर्मूला वाइज बताया था. कैपिटल R की वैल्यू क्या बताई थी? ABC. अब ABC मतलब तीनों बराबर है, विच इज a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा. डेल्टा क्या था? √3/4 a स्क्वायर. तो r की वैल्यू कितनी आती है? r की वैल्यू आती है a/√3. स्मॉल r की वैल्यू क्या बताई थी? डेल्टा इज इक्वल टू RS. तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा अपॉन S. डेल्टा क्या है? √3/4 a स्क्वायर. और S की वैल्यू कितनी है? सेमी पेरीमीटर, विच इज a+a+a डिवाइडेड बाय 2, विच इज 3a/2. 3a/2, 2 ऊपर चले गया, a कैंसिल, नीचे नीचे √3 आ जाएगा और 2 रूट, है ना. तो a अपॉन 2√3. तो r अपॉन r की वैल्यू कितनी आ रही है? r और अपॉन r की वैल्यू कितनी आ रही है? a और a कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा. कितनी आ रही वैल्यू? देखो, 2 रेशो 1. a/√3, a/2√3. तो सिंपल सी बात है, ये और ये कैंसिल, ये 2 ऊपर चल जाएगा. 2:1. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. अभी सेकंड मेथड बताता हूं मैं. सेकंड मेथड बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल है. कैसे मैं बताता हूं. सबसे इजी तरीका है सेकंड मेथड. कैसे? दिस वाज द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. मैंने मीडियन ड्रॉ करी या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करी या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, सेम होगा नहीं होगा? है ना. हाँ भैया. क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. जब मैंने बोला चारों पॉइंट्स मर्ज करते कोइंसाइड करते, तो सिंपल सी बात है, वो एक ही. दिस AD इज ऑल. दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द ऑल्टीट्यूड, एंड दिस इज द, व्हाट इज दिस, और क्या है? दिस इज द मीडियन एज वेल.
चारों चीजें। मीडियम। अब सिंपल सी बात है, अगर इसके सारे पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सरकम सेंटर, अगर मैं सरकम सेंटर मानता हूं तो व्हाट इज दिस, अगर सरकम सेंटर मानता हूं तो ये आर हो गया, हाँ है ना। हाँ भैया। हाँ। अगर अगर मैं इसको इन सेंटर मानता हूं तो ये स्मॉल आर हो गया, हाँ भैया। है ना। इन सेंटर मानता हूं ये स्मॉल आर हो गया। और अगर मैं इसको सेंट्रोइड मानता हूं तो ये मीडियन को किस में डिवाइड करता है, 2:1, तो कैपिटल आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:1। अरे हाँ है ना। हाँ भैया हो गया। सिंपल था ना, लॉजिकल था, ठीक, कुछ भी इसमें ऐसे वो वैल्यूज पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इट वाज दैट इजी। अब इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ चीजें पता चलती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई, 42 2a। 2a। अरे, क्योंकि हाफ इंटू बेस, इंटू बेस तो ए है, हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2a, तभी तो बोलते हैं √3/4a², ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए आएगा, हाफ इंटू ए इंटू, ठीक है। ये किस तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको ऑल्टीट्यूड नहीं पता तो आवाज नहीं आ रही इक्विलेटरल क्या? ट्रायंगल की और आइसोसेलेस। मेरे को आवाज आ रही है, तेरे को आवाज नहीं आ रही? मैं बोल रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी शायद। क्या बोला तूने, क्या बोला बता। क्लियर है भैया। यही बता रहा था, आप ठीक है। एल्टीट्यूड पूछ रहे थे ना। क्लियर है भैया। हम्म। तो क्या कहते हैं, कैसे निकलता है √3/2a, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री। लगा लो आप अपना इक्वल, दिस इज 90 डिग्री, अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, है ना। दिस इज ए, तो ये और ये लेना है, तो आपका साइन लेना है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और आ गया आंसर आपको, ठीक है। अभी एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद फिर सीधा हम थ्योरम्स पे आएंगे एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। जब किसी भी ट्रायंगल में जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, and the medians AD, BE and CF. So this centroid, ठीक है, तो this results in 6 triangles of equal area. Understood? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब कोई भी एक ट्रायंगल की एरिया 1/6 होएगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं मीडियन होता है, सिंपल सी बात है, दैट डिवाइड्स द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इनटू 2 हाफ्स, है ना। तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इस वाले ट्रायंगल का और क्या बड़े वाले ट्रायंगल का, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसको जी लिख देता हूं तो BGC, इसका रेशियो बताओ, बताओ, बताओ बीजीसी भाई। का और इसका थ्री ABC थ्री और रेशो वन। BGC का रेशियो क्या, 3:1। 3 थ्री रेशियो रेशो वन। ये 3:1, बीजीसी वाला क्योंकि ट्रायंगल क्योंकि ये ऐसे। हाँ हाँ, बता बता। ये बीजीसी वाला ये ऐसे 3 ट्रायंगल है सिमिलर, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो हम्म। जाएगा ये। तो सी, बीजी की ए जैसे बी सी, बैक जे ए में बी करेंगे सी, तो वो। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसको और किस तरीके से लिख सकता है, और किस तरीके से लिख सकता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसको इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, पता है ना। हाँ भैया। लेकिन यहाँ पर ऑल्टीट्यूड्स तो नहीं है, दिस इज देयर मीडियम्स,
ठीक है। ये उसके पर्सपेक्टिव से तो नहीं पता, बट चलो ठीक है, तो दिस वाज द राइट आंसर, क्योंकि अगर वैसे भी देखे जाए तो ए बी सी इज 1 2 3 4 5 6, 6 और ये कितना है 1 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3:1। ये इतना जानने के बाद इससे ज्यादा तो कोई ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। बाकी ये देखते हैं अगर कोई क्वेश्चंस मिलता है तो उसमें मैं आई एक्सप्लेन। ठीक है। बिफोर कमिंग टू सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ये थ्योरम से पहले मैं लिखता हूँ कुछ और, इफ आई एम मिसिंग और नॉट। यस, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन दर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, क्या है ये? देखो, एक मैं बताता हूँ एंड द अदर यू हैव टू प्रूव, इट इज योर होमवर्क। ठीक है। दिस इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ही एक प्रॉपर्टी निकलेगी किसके लिए? फॉर द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एडी, एडी इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन। मैं बताता हूँ क्या चीज है। ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टीज वी हैव टू प्रूव दैट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी डॉट बी डी। ठीक है। व्हाट इज एडी? एडी इज दी इस साइड का, ए बी साइड का दूसरी साइड पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ए बी का साइड बी सी पे, इसका इस साइड पे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? जैसे अगर सूरज ऊपर है तो जो शैडो कास्ट होगी, जैसे भी ये स्ट्रेट शैडो अगर ऊपर है ना, एक के ऊपर है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर एक के ऊपर सूरज है तो जो शैडो कास्ट होगी, जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, दिस इज दी, दिस इज दी तो व्हाट यू कॉल डी पॉइंट पर होगी। प्रोजेक्शन। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस डी पॉइंट विल बी व्हाट, दिस डी पॉइंट विल बी दी परपेंडिकुलर। समझ में आया? हाँ। तो हमें ये समझ प्रूव गया। करके दिखाना है ये वाला चीज, क्योंकि इससे अपोलोनियस थ्योरम प्रूव होगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब कौन सी हमें हमें थ्योरम ये है? प्रूव करना है, टू प्रूव ये वाली, ये चीज अपोलोनियस थ्योरम मैं बताऊंगा कौन सी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। टू प्रूव दिस, तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर ये दे दिया मैंने इस तरीके से, दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा इक्वल नहीं है। ठीक है, बस ये पता है कि ये 90 डिग्री पे आ रहा है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सिंपल सी बात, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अरे हाँ है ना? हाँ भैया। हाँ ए भैया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सिंपल। ए डी स्क्वायर। अभी क्या कर सकते हैं? अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना है? ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी करना है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एडी की इसमें से वैल्यू, एडी स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल के इसमें पुट कर दूंगा मैं। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। एंड एक चीज और, देयर इज वन मोर थिंग। बीसी जो है, बीसी क्या लिख सकता हूं मैं? बीसी को लिख सकता हूँ, बीसी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं बी डी प्लस डी सी का डी होल सी स्क्वायर। होल दिस इज स्क्वायर। बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर फोर डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी प्लस डॉट सी डी। ठीक है। सी डी। तो अभी, हाँ, तो अभी इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आ जाता है ए बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर की वैल्यू, बी डी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज बी सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें इक्वेशन में। ठीक है। प्लस मैं ये सी डी पहले लिख देता हूँ, प्लस सी डी स्क्वायर माइनस माइनस बी डी। माइनस बी डी मतलब मैं इसको ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा और इस साइड में प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? विच विल बी इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी डॉट सी डी। ठीक है। माइनस का सी डी होगा ना ये तो। हम्म, एक सेकेंड।
दिस इज माइनस, और साइन में गड़बड़ है यार कहीं पे। तो अगर मैं माइनस बी डी स्क्वायर लिखता हूं तो इट विल बी माइनस, माइनस बी सी साइन स्क्वायर। में गड़बड़। सही है, सही है। एंड आई थिंक मेरे को सी डी नहीं है, देख सी डी नहीं है इस फॉर्मूले में, सी डी नहीं है तो मैं सी डी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो माइनस बी डी स्क्वायर, सी डी को सब्स्टिट्यूट करो, सी डी को, सी डी की वैल्यू हटा, सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी डॉट सी डी। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी डॉट सी डी। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आ गया माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस टू बी डी माइनस डॉट टू सी डी। बी डी। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैं माइनस टू बी डी कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, बीच में कॉमन लूंगा तो क्या निकलेगा, बी डी प्लस सी डी। और बी डी प्लस सी डी, इसको डी सी लिख दो। ठीक है, व्हाट इज दिस वैल्यू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी प्लस डी सी, क्या होएगा, बी सी हो जाएगा, डॉट बी डी। प्रूव बी हो डी गया नहीं हो हो गया, गया प्रूफ। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हाँ प्रूव, भैया। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। ठीक है, अभी इसका ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं जो बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये खुद प्रूव करके देखना है, यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ। आई एम गिविंग दी, दिस इज फॉर एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ऐसे ही ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का देयर इज दिस, इसका भी एक ऐसे एक फॉर्मूला है, उससे अपोलोनियस थ्योरम बहुत आसानी से प्रूव होगी, देखना इसको। So we have our obtuse, ठीक है, इट इज ऑब्ट्यूज एट एंगल बी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, दिस विल बी बाहर होगा डी, डी। बाहर आएगा, बाहर एक। ठीक है, ए बी सी, इसकी जो फॉर्मूला है नोट करना, इसको प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी डॉट बी डी। समझ में आया, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है, ये नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया इंदर, स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा, लैग हो रहा है, आपकी आवाज नहीं सेम तो कट है, रही है। मेरी आवाज आ रही है, हाँ, अब अब आ ठीक रही है है। भाई। अब आ रही है सही। एक बार देख लेता हूँ कौन से वाईफाई से जुड़ा हुआ है यार, ये 4G या 5G। ठीक है, तो दिख गया, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी बी डी है, वहां पे माइनस था। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज दी अपोलोनियस थ्योरम। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए डी मीडियन है, समझ में आ रहा है, ए डी इज अ मीडियन, तो वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ
ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको दो साइड दे रखी है और मीडियन का आ जाता है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी साइड का बता सकते हो, मतलब ठीक है, दूसरी साइड का बता सकते हो। क्यों? दो साइड दे रखी है, देखो अगर ए बी और ए सी दे रखा है और मीडियन की लेंथ दे रखी है, या फिर तीन साइड दे रखी है तो आप मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि तीसरी साइड का हाफ निकाल दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे हाँ तीसरी भैया। साइड ये दे दी, इसका हाफ निकाल दिया और इसमें वैल्यू में पुट कर दिया, आपको मीडियन की लेंथ निकल जाएगी। इसका प्रूफ वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ऊपर दो थ्योरम बताई है उससे इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ई पॉइंट पे ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करें, ठीक है। तो इंदर ये क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है इतनी आसान हो जाती है कैसे, अभी इसको देखना ध्यान से। वी विल सी द ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ट्राइंगल है ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी। ऑप्टिव। ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल में मैंने ऊपर में क्या थ्योरम लिखवाई थी अभी? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर था? ए बी का स्क्वायर इज देखो इक्वल्स टू में यहाँ पे ए सी का स्क्वायर किसके बराबर था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी, बी डी। ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्योंकि ये उसकी दूसरी साइड होगी, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। और प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है। हाँ भैया। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू प्रोजेक्शन कितना है? प्रोजेक्शन इज डीई, ठीक है। ट्राइंगल एडीसी डिस्कस करो। ट्राइंगल एडीसी, ये ऑब्ट्यूस था, ये कितना है? ये एक्यूट है। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। इसकी क्या बन जाएगी? इसकी क्या बन जाएगी क्वेश्चन बताओ? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एसी ए का डी स्क्वायर, का हाँ, स्क्वायर इस प्लस साइड से देख, इस साइड से देखना है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी सी डी सी डॉट डी डी ई डी ई। डॉट डी डी। तो करो, अब इसको ऐड करो। बस कर दी ना गड़बड़ कर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन थोड़ी माइनस है, एक्यूट में माइनस साइन था, याद आया? हाँ हाँ भैया हाँ। बस कर दी गड़बड़। अब इन दोनों को ऐड करो, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। और सिंपल सी बात है, बीडी किसके बराबर है? बीडी डीसी के बराबर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो टू टाइम्स ऑफ एडी ए स्क्वायर हो डी। जाएगा। बीडी और डीसी मैंने बताया बराबर है, तो मैंने क्या लिख दिया? बीडी स्क्वायर। और इसमें देखो ये बीडी और दोनों सीडी बराबर है और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपकी पूरे थ्योरम होगी फुल टर्म प्रूफ। कैंसिल आउट हो जाएगी। मस्त थ्योरम थी, ये नहीं थी? और इसका प्रूफ कितना प्यारा था जब हमने देखा कि दिस कैन बी प्रूव फ्रॉम एक्यूट एंगल एंड राइट ऑप्टिक एंगल की प्रॉपर्टी से। और ये किससे डेराइव्ड है? ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे डेराइव्ड है, ठीक है। बड़ी विचित्र बात है कि अभी हम पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा मैं, ठीक है, जो इतनी लेट, ठीक है। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो मैं पहले ही बता चुका था उसमें ही, जब राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता था, ठीक है। तो दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर perpendicular, this is your base, this is your hypotenuse. This is the longest side, this is opposite to the vertex having 90 degree angle, ठीक है। तो यही चीज था। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग। हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देता हूँ, फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, एंड देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। नहीं, आफ्टर उसके बाद हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी भी करेंगे, ठीक। तो अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देता हूँ। बिफोर कमिंग टू दी
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. This theorem says that if there is a triangle ABC and if a line is drawn parallel to the side, ठीक है, टू अदर साइड एक लाइन ड्रॉ करी जाती है विच इज पैरेलल. अगर मैं इसको डी सी डी ई बोल देता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो व्हाट इट डज, ये क्या करती है, इस ट्राइंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. क्या है प्रोपोर्शन, देखो ध्यान से. एडी एडी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. ठीक है, हाँ इसमें भैया। बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसके इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं. ठीक है, और ये मैं बता भी देता हूँ कि कैसे आया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे आई, प्रूव कैसे करते हैं, सिंपल सी बताता हूँ. वी विल सी द ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स. अब इसमें सिमिलैरिटी आ जाती है, कॉन्ग्रुएंसी वाली जो चीजें आ जाती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक चीज बताता हूँ सिमिलैरिटी की. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की जो मेन बात है दैट इज कि सारे एंगल्स उसमें क्या होते हैं, सारे एंगल्स सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है उसकी, प्रोपोर्शनल होती है. अगर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी इक्वल होगी तो दैट दो ट्रायंगल विल नॉट बी सिमिलर, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर हैं दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट जो कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगे ही होंगे. ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे. अब मैंने क्या बोला, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स बराबर है. सिंपल सी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स में बराबर है. कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडी और ट्राइंगल एबीसी. तो तीनों ट्राइंगल, जब तीनों एंगल्स बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या सिमिलर हो होगी, गए। प्रोपोर्शन में आ गए. अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आएगी तो क्या आएगा, एडी अपॉन ए बी आएगा ए इज इक्वल टू ए ए बी ई अपॉन इस ए सी ए आएगा. सी। लेकिन हम इधर से इधर कैसे आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे विच आर नोन एज दी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात. इसका हम, अब ये प्रोपोर्शन में है तो सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, है ना, सिंपल. तो डिविडेंडो क्या आएगा, डिविडेंडो हो जाएगा अगर इसमें मैं -1 करता हूं ऑन बोथ साइड्स, तो एडी माइनस ए बी माइनस ए डी, -1 करूंगा बोथ साइड्स में, -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी. ए बी माइनस ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई. ए और इसको फिर से इनवर्स ले लूंगा, इसको फिर से इनवर्स ले लूंगा, तो आप ध्यान से देखो ये सेम बन जाएगा इसका. तो दिस वाज डिविडेंडो. अगर मेरे को इससे इससे मेरे को इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है, सॉरी इससे तो नहीं जा पाएंगे, इससे जाना है, इससे वापस इस पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा बोथ साइड्स. तो दिस इज नोन एज द कॉम्पोनेंडो. दिस वाज डिविडेंडो. तो बेसिकली ये एक प्रोपोर्शंस में यूज होती है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. समझ में आया? तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ अप्लाई कर दें. ठीक है, तो दिस वाज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में रहेगी. By the help of this proportionality theorem, I'll prove the angle bisector theorem. What does the angle bisector theorem says? अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम.
और एडी जो है वो एक्स डिग्रीज में दोनों साइड में बराबर भी बांटते हैं, तो इट इज एक्चुअली बाइसेक्टेड द एंगल। तो ये कहना चाहता है एंगल बाइसेक्टर जो होता है सेम डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। समझ में आया? हाँ भैया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज दिस इज वन लिख देता हूं, इसको भी वन लिख देता हूं, मतलब बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड करेंगे साइड बी ए को, सच दैट इस पॉइंट पे एक्सटेंड करेंगे कि एक पॉइंट पे जाता है ई पे, सच दैट ए डी इज पैरेलल टू ई सी। समझ में आया? हाँ इंदर, समझ में आया? हाँ भैया, आगे भैया। अब अगर मैंने पैरेलल, अगर ये पैरेलल कर दिया तो इससे मेरे को क्या चीजें प्रूव हुई, ये बताओ। इससे कौन सी थ्योरम प्रूव हुई? सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई। समझ में आया? ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अभी भी डिस्कस करा था, है ना? हाँ भैया। हेलो। ठीक है। अब हाँ हाँ, मेरे को तेरी आवाज आ रही है। ठीक, चलिए। ठीक है। क्या हो गया? वो शो नहीं कर रहा, वो शो करता है ना पर क्या शो नहीं बोलते कर रहा? टाइम, बोलते टाइम आईडी के अच्छा। साथ शो करता है ना, बोलता वो शो नहीं हो रहा। मुझे लगता है नहीं जा रही आवाज। को नहीं नहीं, आ रही है, मेरे को आ रही है। अब देखो ये वन और वन है, और मैंने बोला एडी इज पैरेलल टू ईसी। तो अगर ये वाला एंगल वन है तो ये वाला एंगल क्या हुआ? वन हुआ। अरे हुआ ही नहीं हुआ, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोर्स फोटे। ये एंगल वन हुआ क्योंकि ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। है ना? हाँ भैया। सिंपल सी बात है। अब ये देखो, इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इससे क्या मतलब मिला? ए ई की वैल्यू किसके बराबर हुई? ए सी के बराबर। अरे हाँ, है ना? आइसोलेटिव। होगी ना बराबर उसके। हाँ भैया। अब अगर ए ई की वैल्यू ए सी होगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए ई को हटा के क्या लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ। और देखो इसको, हाँ ये चीज, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया? ये देखो, ये प्रूव हो गया, हाँ है ना? भैया। हाँ जी। ठीक है, तो ये तेरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी प्रूव होगी। अपोलोनियस थ्योरम कर दी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर दी, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। तेरे ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स भी डिस्कस हो चुके हैं सारे के सारे। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बचता है। विल टेक अ ब्रेक फॉर 30 सेकेंड्स, है ना? तो ये सारी चीज हो चुकी है। एक बार हम इसकी शीट्स में देख लेते हैं, हाउ मच इज रिमेनिंग। भैया इसे ना फोन के उस पे करवाया मतलब, ताकि फोन में भी हो सके अच्छे से। क्या कर रहा हूँ? जैसे आपने ये इतना जूम करके इतना आगे तक लिखवा देता हूँ ना इस पे, एक्स्ट्रा सीट पे, चिंता मत कर, तो अच्छे ये से तेरे व्यू नहीं को, होता। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा, मैं तेरे को वीडियो में दिखा दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा। और मैं तेरे को एक सेकंड इसको, तो अभी हम पर सिमिलैरिटी ऑफ नोट तो ट्रायंगल्स वही। डिस्कस करते हैं। नोट्स नोट करने की जरूरत नहीं है तेरे को, मैं नोट्स तेरे को फोन में मिल जाएंगे ऐसे ही, एज इट इज वन नोट में, ठीक है? वीडियो वन नोट पे दिख वीडियो रहे में थे यूट्यूब पे मुझे। डाल दूंगा। हाँ दिख जाएंगे तेरे को, बढ़िया दिख जाएंगे। तेरे को दिख रहे थे? दिख रहे थे, मैं ये तो कह रहा हूँ। सीडीएस वाला पोर्शन, सीडीएस वाला सेक्शन दिख रहा मैं था तेरे वो। को तेरे को शेयर कर रहा
तो अभी हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर अलाइक इन शेप ओनली, नॉट इन एरिया। ठीक है, इसका सिमिलैरिटी का सिंबल इज दिस, जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी साइन, इसको कुछ और भी कहते हैं, इसको सिंबल का नाम भूल गया। corresponding angles of two similar triangles are equal. Corresponding angles are equal, but corresponding sides are only in proportion, not equal. Very very important point. ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ उसमें तीन चीजें लगती हैं, उसके तीनों के तीनों एंगल्स बराबर है, बट साइड प्रोपोर्शनल है। देखो सिंपल सी बात, तीनों एंगल्स बराबर होने पे तो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, बट उनकी साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो वो सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द एंगल इंक्लूडेड। ठीक है, तो दिस इज 2 और 4, दिस इज 6:12, और ये एंगल भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका, चेक कनेक्ट करोगे आप कैसे भी, तो दैट विल बी सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ये 8 बनता है तो ये कितना बनेगा, बताना इंदर, कितना बनेगा ये जल्दी, ये साइड क्या होगी, भैया अगर ये आठ 2 और 4 है, 24। 24। 24। ठीक है, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से सिमिलर होते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से सिमिलर होते हैं, या फिर तीनों के तीनों साइड उसकी क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में है, तो भी सिंपल सी बात है एंगल उसके बराबर होंगे। ठीक है, वो इम्प्लाइड है वो। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये डिस्कस करने में। अगर तुमको याद है, मैं एक मेंसुरेशन में मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था उसमें मैंने इनका यूज किया था, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला, जिसमें एक हाँ कोन के भैया, अंदर एक एक बॉल फंस पेपर। गई थी। हाँ भैया उसमें ठीक है, था। तो ये इंपॉर्टेंट टूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, टू ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब एरिया के टर्म्स में भी तो कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, इक्वल टू और सिमिलर, है ना, इसको उस वाले साइन से। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो सिंपल सी बात है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। इसकी 4 कंडीशन दे रखी है, एस एस एस। अब थोड़ा फर्क है, एस 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 हमने वहां पे भी पढ़ी थी, बट यहां पर साइड्स इक्वल हैं, इक्वल है, यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है। प्रोपोर्शनल में दिस था। इज द डिफरेंस। हाँ भैया। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे, वहां पर भी ऐसे ऐसे, बट उसकी जो दो साइड्स थी वो प्रोपोर्शनल थी, कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो अपने आप ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें एक ए से प्रॉपर्टी भी आती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक साइड दे रखी है और दो एंगल बना दिया आपने, सिंपल सी बात है, अगर आपने दो एंगल इक्वल कर दी तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही नहीं होगा, लॉजिकल बात है नहीं। हाँ वो होगा। हाँ भैया। तो तीनों एंगल तो बराबर हो गए, तीनों एंगल तो किसके केस में बराबर होते हैं, सिमिलैरिटी के भी बराबर होते हैं। लेकिन अगर तीनों एंगल बराबर है और उसकी एक साइड और दूसरे वाले की भी एक साइड बराबर कर दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दिस इज द ए से प्रॉपर्टी। और ये किसके केस में आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, तो उसके इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हाँ भैया। दिस वाज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। अब इसके नीचे पॉइंट्स देख लेते हैं, हमने कवर करे या नहीं करे। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड, इन अ ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर है, तो देख लिया था हमने, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन ए सी लिख दो उसको, ए बी अपॉन बी डी ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी उसी में ही उसी का पार्ट है ये, कि अगर एक लाइन है जो डीई, ये इसको m/n में डिवाइड करती है, देन जो डीई की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू बीसी। अरे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो क्या है, वो ट्रायंगल्स सिमिलर थे, याद है मैंने बताया था उसमें, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर थे। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी की रेशियो है m अपॉन m प्लस n, तो सेम क्या होएगा, डीई अपॉन बी सी, m अपॉन m प्लस n।
ये लिख रखा है डी अपन एम प्लस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से ही डिराइव हुआ था। मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं। आती भैया। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है उसके। अभी सीन क्या था, हमने पैरेलल भी कंसिडर कर लिया था, है ना, रेशियो में प्रोपोर्शन कंसिडर कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिस लाइन सेगमेंट डी ई विल जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होगी, ये पैरेलल होगी, पहली बात ये पैरेलल होगी, और ये किसके होगी, इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, इक्वल टू हाफ। क्यों, दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों, ये अगर इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है, तो ये m इज टू n में लो, तो ये क्या हो गया 1:1। मेरी बात समझ में आई? तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हाँ, अपॉन वन प्लस वन टाइम्स ऑफ बी सी। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी। 1/2 ठीक है, BC। सिंपल सी बात। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। In a triangle ABC, if D and E are midpoints on AB and AC respectively, such that D is parallel to DC, then हाँ ये उसका कॉन्वर्स है, ये उसका कॉन्वर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अपोलोनियस थ्योरम मैं बता चुका हूँ, प्रूफ भी बता चुका हूँ। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their two corresponding sides, of any two corresponding sides. Very important point. The area of two similar triangles are in the ratio of squares of their corresponding altitudes, ratio of squares of their corresponding medians, squares of their corresponding angle bisectors। ठीक है, तो कहने का मतलब इसने हर एक एस्पेक्ट से, अगर एक ट्रायंगल की, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर आप एरिया निकाल रहे हो, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी होगी, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, उनके स्क्वायर्स के बराबर होगी। सिंपल, साइड्स का तो था ही था, हमने पढ़ा था, ठीक है। If area of two triangles are similar triangles are equal, then the triangles are congruent and vice versa. This was the last point. Okay. Let me see if I'm missing out something. Let me recall. So this last thing is remaining. Okay. This is also some important thing. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस करते हैं हम। ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल ए। अगर एक मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं इधर से ऑन दी हाइपोटेन्यूज डी, तो तीन ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, एंड दो तीस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स हैं, ए बी डी, ABD सी ADC। सी ए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। सिमिलर ट्राइंगल्स की एक चीज बात याद रखना, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को साथ में लिखते हैं, मतलब समझ रहे हैं? अभी बताता हूँ इस चीज को कैसे। और सी बी ए, ठीक है। समझ गया भैया, समझ गया। तो देखो, है ना, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूँ, ट्राइंगल एबीसी पूरी की बात करता हूँ, तो क्या दिखता है, एंगल ए किया है 90 डिग्री। 90 अगर मैं डिग्री। एंगल बी को मैं मान लेता हूँ अगर एंगल बी को थीटा मान लेता हूँ, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एंगल, अभी मैं ट्राइंगल ट्राइंगल डिस्कस करूंगा। कौन सा वाला ट्राइंगल डिस्कस करूंगा, ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, और हाँ, एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है, थीटा है, थीटा थीटा है। ठीक है। तो एंगल ए कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो दिख रहा है ए और डी आ रहा है, बी तो बी है ही, और सी और ए है। इसीलिए इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, तो ए ने डी की जगह ली है, बी बी है, और ए सी है। समझ में आया? हाँ भैया। दिस बी तो है ही, दिस। तो ये वाला ट्रायंगल कैसे लिखा जाएगा, अगर उसको ए बी सी लिख रहा हूं, तो इसको लिखूंगा मैं डी बी ए। अभी बचता है हमारे पास ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। इसको भी सी ए डी नहीं लिखेंगे, इसको भी हम डी सी ए लिखेंगे, डी सी ए। बिकॉज एंगल डी की वैल्यू कितनी है, एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 90। 90 डिग्री। 90। एंगल सी मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, एंगल सी 90 डिग्री माइनस थीटा मत लेके आओ, लेकिन एंगल ए कितना था, एंगल ए कितना था, यहाँ पे देख, 90 डिग्री 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा था। तो एंगल सी कितना हो गया, थीटा। ठीक है,
तो अब ये दोनों सिमिलर हो गए, वो दोनों सिमिलर हो गए। ये मैं प्रूव नहीं करना चाह रहा कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बराबर है, बट मैं सिमिलैरिटी प्रूव करना चाहता हूँ कि तीन ट्रायंगल बनेंगे, तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ में आया? जी भैया। ठीक है। डन। एक सेकंड, यहाँ पर डी गड़बड़ हो गई ना, देखो ये वाली गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। यहाँ पर ए सी होगा ये ना 90 माइनस थीटा ये तो। वाली वैल्यू, ये वाली 90 माइनस थीटा थी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 90 ये था ना 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने ट्रायंगल डी भी डिस्कस करा था, ये हाँ 90 माइनस थीटा था, तो ये कितना आएगा? ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये तो ये थीटा 90 होगा। माइनस थीटा है। एंगल्स, एंगल सी इज 90 माइनस थीटा, और एंगल ए इस केस में विच इज थीटा। तो अब इसकी थीटा। सिमिलैरिटी कैसे होगी? दिस विल बी, अभी देखो ध्यान से, दिस विल बी डी ए सी। समझ में आया? डी ए सी। क्योंकि देखो, ये बी और ए बराबर हो रहे हैं, बी और ए की वैल्यू थीटा थीटा हो रही है, ठीक है। और डी डी तो है ही, और ए और सी के बराबर हो रही है, क्योंकि ए 90 माइनस थीटा है, सी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज बताना चाहता हूँ, जिससे फिर चैप्टर की थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। दिस इज, कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूं with the same base, with the same base. This is triangle ABC and this is a triangle DBC. So area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC. डी सी। सिंपल सी बात है, क्यों? सब सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों का जो बेस है कॉमन है, और हाइट क्या है? हाइट क्या होगी? कॉमन। ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि दोनों साइड एक्यूट इंटू एंगल कॉमन ट्राइंगल है, होगा। तो ये दोनों का, अरे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस तो बराबर होता है ना, तो हाइट दोनों की बराबर होगी, हाँ तो भैया। इसी वजह से दोनों का एरिया बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने सारी चीज बता दी है। इस वाले जो पिछले केस में, इस वाले केस में ना एक चीज पॉइंट नोट कर लेना, एक रिलेशन है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात है, तो एडी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बी डी डॉट डी सी। ठीक है, ए बी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी, एंड ए सी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अगर इससे मैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना चाहूं, कैसे? दिस इज योर ए बी स्क्वायर, दिस इज योर ए सी स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरा ए डी स्क्वायर आना चाहिए, ए डी स्क्वायर नहीं, सॉरी, बी सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करूं तो मेरा बी सी स्क्वायर आना चाहिए। करो इसको ऐड, सॉरी इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, कुछ कॉमन है, बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन है तो, और हाँ भैया। बी डी प्लस सी डी, ये भी बी सी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, ये ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा बताना एक बार। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल था, तो उसमें मैंने हाइपोटेन्यूज पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा था। ठीक है, तो उस ऑल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस हाँ जी जिसमें वो वही ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक। so with this I think we have completed and wrapped up the entire theory part of the triangle chapter। कुछ रहता नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी भैया।